semiconductors. Okay, semiconductors. Okay, so to define semiconductors, first we will discuss a theory, that is free electron theory. Free electron gas model. This is also known as free electron gas model or free electron theory. Okay, then we will discuss band theory. So band theory and a free electron gas model. Okay, today we will discuss these two theories. Okay, so according to free electron theory, when electrons move across any conductor, they are free just like gas particles. So when you have a conductor, okay, so electron are free to move. Okay, they only change their direction when they collide with positive ions of the material, but electron does not exert force on each other, just as particles in gas theory. As you have studied in kinetic theory of gases. In kinetic theory of gases, the particles, gas particles, do not exert force on each other. Their potential energy is zero. Their potential energy is zero. So they move randomly in all directions. Okay. So gas particle can move in any direction. They are moving randomly. Just like that, electrons in any metal, they move like a gas, and they do not feel any potential inside the conductor. So inside the conductor, their potential energy is zero. But outside the conductor, their potential energy is infinity. Means electrons cannot come out of any conductor. Even though you apply any external source, but they will not emit out. Okay, so इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वहां पे दे आर नॉट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, और वहां पे जो पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस आल्सो डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव आयंस भी फोर्स नहीं लगाते इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसका मतलब है उनके अंदर जो कंडक्टर के अंदर है, ठीक है, मतलब इनसाइड द कंडक्टर potential energy is zero, but outside the conductor potential energy is infinity। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम आउट ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते बाहर। इवन दो आप देखते हैं कि व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, यू सी स्पार्कलिंग, और जैसे थर्मियोनिक इमिशन होती है, थर्मियोनिक इमिशन में ऐसा होता है कि आप जब कैथोड होता है, कैथोड पे व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट आउट। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी बाहर इन्फिनिट हो, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बाहर। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज पार्टली रॉन्ग, तो ये रॉन्ग थी एक, ठीक है, थ्योरी के इसके मुताबिक, क्योंकि पोटेंशियल बाहर इन्फिनिट होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी क्वांटम थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ऐसा नहीं है कि इनसाइड पोटेंशियल जीरो होती है। तो इनसाइड पोटेंशियल होती है ड्यू टू बिकॉज देयर आर एटम्स इनसाइड एनी material, when electron pass through these ions,
there is some potential energy because there is attraction, and due to attraction there is a potential energy. When electrons comes near to the positive charge, its potential energy decreases, but when it goes away from the positive ions, the potential energy decreases. So there does exist potential energy. Okay, so this is according to quantum model. That was that we previously discussed. That was classical model. According to classical model, there is no potential inside the material, and according to quantum model, there does exist a potential inside any uh, crystal or any material or any conductor. Okay, so that was our free electron theory. Okay, so now we will discuss band theory. Band theory. So on the basis of band theory, we can define solids. This is band theory of solids. Okay, so solids is a state of matter. So solids can be categorized into three materials: conductors, insulators, and semiconductors. Okay, so there are three types of materials: conductors, insulators, and semiconductors. And we can define all these three materials on the basis of band theory. तो बैंड थ्योरी का मतलब क्या है? बैंड मींस आपको पता है, बैंड तो ये मतलब स्ट्रिप, ठीक है। और बैंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स वी आर डिफाइनिंग बैंड थ्योरी। एटम्स के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं इसके शेल्स होते हैं, ठीक है। इसको के शेल कर दें, इसको एल और एम, ठीक है। सो एटम के अंदर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, ठीक है। शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं, ठीक है। सब शेल्स और इसे कहते हैं हम ऑर्बिटल्स। सब शेल और ऑर्बिटल आर सेम, ओके। और ये जो शेल्स होते हैं इसे के, एल, एम इस तरह नाम देते हैं। और एक शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2n², ओके। और सब शेल्स जो होते हैं उनके नेम होते हैं एस, पी, डी, एफ। एसपीडीएफ होते हैं, इनके नाम होते हैं शेल, सब शेल के, ठीक है। तो सब शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सब शेल के अंदर होते हैं, शेल्स के अंदर नहीं होते। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एसपीडीएफ ये नेम है सब शेल की, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स सब शेल के अंदर होते हैं, ठीक है। और हम डिस्ट्रीब्यूट जब इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हम सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, ठीक है। पी में 10, इसके नंबर होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। वो नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पी के। और
डी के भी इलेक्ट्रॉन्स शायद 18 है, ठीक है। इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक एक शेल के, हर शेल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उन सबकी कैपेसिटी होती है एक, ठीक है। तो शेल्स अब क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये शेल्स हैं, फॉर एग्जांपल लेवल्स हैं, शेल्स मींस एनर्जी लेवल्स, एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होती हैं। अब एनर्जी लेवल्स, फॉर एग्जांपल एनर्जी लेवल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मतलब एक एटम आपने देखा है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल एटम की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो होती हैं आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, फॉर एग्जांपल दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट means first shell, and for example this is S, and this for example this is 2S, and this is 2P, ठीक है। मतलब इस तरह आप उनकी ये जो मतलब शेल्स हैं, इन शेल्स को आप मतलब एनर्जी एनर्जी लेवल्स को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जैसे आप ऊपर जाएंगे एटम में उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिस इज सिंगल एटम, दिस इज सिंगल एटम। सिंगल एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को मखसूस एनर्जी लेवल्स होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है, ठीक है। तो इन एनर्जी लेवल्स जो होती हैं जो मैंने ये रिप्रेजेंट किए हैं, एस, 2s, 2p, these are energy levels of single atom, okay। so if, ठीक है, तो इसमें जो आपकी एस लेवल है, 2s लेवल है, 2p लेवल है, ठीक है। इनमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में मैक्सिमम 2 होते हैं और पी में शायद 6 होते हैं, या ठीक है मुझे रिमेम्बर नहीं, लेकिन इसका आप देख लेना, ठीक है, नेट पे कि पी के कितने नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और डी के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सिंगल एटम की ये एनर्जी लेवल्स होती है। अगर आप इसके करीब फॉर एग्जांपल यू हैव दिस सिंगल एटम, दिस इज सिंगल एटम, सिंगल एटम एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अगर आप दो एटम करीब लाएं, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस वन सिंगल एटम, और अगर इनको आप करीब लाएं आपस में, फॉर एग्जांपल इफ यू ब्रिंग two atoms close to each other, then their valence electrons are, valence shells are splitted, influenced, वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब पहले ये एक 1s जो लेवल थी ये सिंगल थी, अगर दो एटम आपने करीब लाए तो ये दो में बढ़ जाएगी, दो हो जाएगी, और ये लेवल भी दो हो जाएगी, और ये लेवल भी दो हो जाएगी, ये लेवल्स भी दो हो जाती है when you brought two atoms close to each other, ठीक है। अगर आपके पास तीन एटम है, ये दो एटम्स हैं, अगर आपके पास तीन एटम्स हैं तो उसकी कितनी हो जाएंगी, तीन लेवल्स, ये भी तीन लेवल्स, ये भी तीन लेवल्स, ये भी तीन लेवल्स, ठीक है। अगर आपके पास इफ यू हैव n एटम्स, मतलब बहुत सारे एटम्स, देन दिस बिकम्स अ बैंड, and this becomes also band, this becomes also a band, okay। तो मतलब जो लेवल्स होती हैं 1s लेवल जो थी वो 1s बैंड में कन्वर्ट हो गई, okay। so when you brought
atoms close to each other, they became bands. तो इसको कहते हैं हम बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी का मतलब है कि when you bring more atoms close to each other, they are they are converted into their levels, energy levels are splitted, and they become like a continuous bands, continuous energy levels. So because you know that in solids there are more large number of atoms, so when these large number of atoms come close to each other, their energy levels become continuous and they form bands. So these bands we describe the lower bands, these are completely filled. Okay, these are completely filled, and the highest filled band is known as valence band. Highest, so this is for example band, these are also bands. So this highest filled band is valence band. Okay, and the band higher than this valence band is known as conduction band. This is conduction band. Conduction band. Okay, and in between them there is energy gap. This is known as energy gap. Means electron cannot exist in energy gap. Electron can exist in conduction band or highest filled band or other bands which are lower in energy. Okay, so इनमें electrons हो सकते हैं या इसमें electrons हो सकते हैं, but in between electrons can never exist. ठीक है, that is according to Niels Bohr. Niels Bohr के मुताबिक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर जगह पे नहीं हो सकते. दे हैव स्पेसिफिक एनर्जी, उनके पास एक मखसूस एनर्जी होती है. हर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं हो सकती. उसको ये एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी हो सकती है, दिस एनर्जी, तो मखसूस एनर्जी हो सकती है. ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड गैप के मतलब उसके रिलेटेड हम किसी भी मटेरियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स जो होते हैं उसकी वैलेंस बैंड और जो दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, ये दोनों ओवरलैप करती हैं. ये ओवरलैप करती है मतलब आप थोड़ी एनर्जी से कंडक्टर को देंगे, दे विल कंडक्ट, एंड देयर कंडक्शन बैंड इज हाफ फिल्ड. मींस उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले ही फ्री. व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल दे रेडिली फ्लो द चार्जेस, उसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है कंडक्टर में से, क्योंकि उसकी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करती है. इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के. तो एनर्जी गैप इसके दरमियान जीरो होता है. ठीक है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर, इंसुलेटर्स मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, उसके दरमियान जो वैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड, उनके दरमियान देयर इज अ लार्ज गैप. ठीक है, तो ये जो इसका वैलेंस बैंड है
और दिस इज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड इसका फुल होता है, दिस इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। और उसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नियरली एम्प्टी। ठीक है। तो व्हेन यू अप्लाई potential on insulator, those who are non-conductors, so because there is a large energy gap, so they do not conduct because it requires a huge energy, substantial energy। उसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी गैप जो होता है वो होता है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। उसकी एनर्जी गैप जो होता है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जितनी आप एनर्जी उसे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देंगे देन दे विल कंडक्ट। तो इतनी एनर्जी आप देंगे that will damage the insulators। ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी आप उसे नहीं दे सकते। ठीक। इसलिए मतलब ये जो इंसुलेटर्स होते हैं दे आर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और तीसरे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होती है दे आर at energy gap, but that energy gap is smaller than insulators। That energy gap is for silicon that is 1.1 electron volt। Okay. And a valence band, this is valence band and this is conduction band। So electron can jump on room temperature। अगर room temperature है, for example room temperature is 300 Kelvin। ओके। तो इस पे मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये जो होते हैं मतलब इनकी जो when temperature increases their conductivity increases। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, if you increase temperature conductivity will increase। okay। but in conductors when you increase temperature the conductivity decreases in conductors, but in semiconductors if you increase temperature their conductivity will increase and the electrons will jump from valence band to conduction band। as electron jump from valence band to conduction band there are holes are created in conduction band। These holes have positive charge, these holes have positive charge। These holes are can give a freedom to electrons, electron can easily move through these uh, holes। So in semiconductors holes also carry charge, holes can provide also contribute to the conductivity। Okay, so that was our band theory।